آج میں آپ کو ایک ایسا انوکھا واقعہ سنانے والا ہوں جس سے آپ ایک سبق سیکھ سکتے ہیں۔ وہ واقعہ ایک حافظ قرآن لڑکی کا ہے۔ جب اس کی شادی ایک شرابی لڑکا سے ہوئی تو اس ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایسی کون سی بھیانک سزا دی جسے دیکھ کر ہر کسی کا بدن کانپتا رہ گیا۔ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے، تبھی پوری کہانی سمجھ پائیں گے۔ محترم دوستوں، پاکستان میں ایک گاؤں تھا، اس میں رہنے والا ہر انسان مسلمان تھا۔ اس گاؤں کا ایک سردار تھا جو کہ بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا، غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ بد اخلاق تھی، غریبوں سے نفرت کیا کرتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ضدی اور آوارہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب دودھ بیچنے والا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام پاکیزہ تھا۔ پاکیزہ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی ان کو کسی نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ گاؤں کے دیہاتی لوگ تھے، اس لیے بچپن میں ہی یہ کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اب اس باپ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی پاکیزہ کو قرآن پاک پڑھائے اور اس کو حفظ بھی کرائے۔ وہ اپنی بیٹی کو قاریہ یعنی بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والی عورت کے پاس چھوڑ کر آیا، اور یوں اس کی بیٹی پاکیزہ قرآن پاک کو پڑھنے لگی کہ وہ 13 سال کی تھی جب اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ جس روز قاریہ نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تو پاکیزہ کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کے صدقے اتارنے لگے۔ بے شک پاکیزہ کے خاندان والے غریب تھے، مگر ایسے موقع پر پورے گاؤں کی دعوت کی گئی۔ جب پاکیزہ کا باپ اس کو عالمہ کے پاس چھوڑ کر آیا، تبھی سے اس نے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ جب میری بیٹی پاکیزہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گی تو میں پورے گاؤں کی دعوت کروں گا۔ اگلے ہی روز پاکیزہ کے باپ نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور سب لوگ اس کے گھر پر آئے، جس میں اس گاؤں کا سردار بھی موجود تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے سردار نے پاکیزہ کو اپنے پاس بلایا۔ پاکیزہ سردار کے پاس گئی اور اس نے اپنے پاس موجود خالی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ پھر اس کے سر پر بڑے محبت سے ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دینے لگا۔ پھر اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ تب کی بات تھی جب 1000 کا نوٹ 10,000 کے برابر ہوا کرتا تھا۔ پاکیزہ نے جیسے ہی وہ پیسے دیکھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کر سکوں۔ سردار تو اس حافظ قرآن بچی کی باتیں سن کر دل ہی دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتی ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر رہا تھا اور اس کو کہنے لگا، میں نے یہ پیسے تمہیں انعام کے طور پر دیے ہیں، بیٹی تم جب بھی قرآن پڑھا کرو میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک اس کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا، مگر وہ ناظرہ پڑھ لے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ حافظ قرآن لڑکی نے سردار کی بات سن کر آمین کہا۔ پھر پاکیزہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر نہ جانے اس سردار کو اس حافظ قرآن لڑکی میں ایسا کیا نظر آیا، وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس سردار کے پاس اس کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا کہ سردار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سردار نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں۔ سردار کی عادت تھی، وہ کسی کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھا نہیں کرتا تھا، مگر آج سردار تب تک انتظار کر رہا تھا جب تک سارا گاؤں اپنے گھر واپس نہ چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس سردار نے اپنے غلام کو بھی اپنے گھر واپس بھیج دیا اور وہاں خود بیٹھا رہا۔ حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، سردار صاحب مجھ سے ناراض تو نہیں جو ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردار نے پاکیزہ کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میری بات سنو۔ وہ آ کر زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ سردار نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی کے اوپر بٹھایا اور کہا، تم اپنے حافظ قرآن بیٹی کو میری امانت سمجھ کر اس کی پرورش کرو۔ یہ سن کر غریب آدمی حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ سردار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سردار نے کہا، میں چاہتا ہوں پاکیزہ جیسی حافظ قرآن بچی میرے سردار گھرانے کی بہو بنے، اس لیے تم آج سے پاکیزہ بیٹی کی پرورش میری امانت سمجھ کر ایسے ہی کرتے رہنا۔ یہ سن کر غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرت سے سردار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، میرے جیسے غریب انسان کی کیا اوقات کے سردار خاندان کا سمدھی بنوں۔ وہ کافی دیر خاموشی سے سردار کو دیکھتا رہا۔ جب سردار نے اس کو خاموش دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے، تم سوچو۔ مگر حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ سردار کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی کہا کہ سردار صاحب آج سے میری بیٹی آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہے اس کو آ کر لے جا سکتے ہیں۔ جب اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو پاکیزہ بھی یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر پاکیزہ رونے لگی اور جلدی سے باپ کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کیسے مجھے اپنے سے جدا کر سکتے ہیں؟ باپ نے اپنی معصوم سی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، میری پیاری گڑیا، میں کون سا تجھے ابھی رخصت کر رہا ہوں، ابھی بہت سال پڑے ہیں، تم ان باتوں کو دل سے مت لگاؤ۔ یہ سن کر پاکیزہ کو سکون ملا، ہر وقت اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگی۔
वह लड़की बहुत ज़्यादा नेक थी। उठते बैठते काम करते हर वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, क्योंकि वह हाफिज कुरान थी। अब तो मोहल्ले के बच्चे भी उसके पास कुरान पढ़ने के लिए आने लगे। वहाँ सरदार ने जब आकर अपनी बीवी को यह बात सुनाई तो सरदार की बीवी बड़े ही गुस्से से उसको कहने लगी, आपका दिमाग खराब हो चुका है। हम लोग इतने अमीर हैं, किस तरह गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं? कुछ तो अपने सरदार होने का ख्याल करो। अभी तो वह बच्ची है, कल बड़ी हो जाएगी। पता नहीं गरीब घराने में उसकी तरबियत कैसी होगी। यह सुनकर सरदार गुस्से से कहने लगा, उस बच्ची को और उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेहतर यह है कि तुम अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सरदार की बीवी ने यह बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसका इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी और डीठ होतो जा रही थी। वह सरदार अपने बेटे को वहां गांव के मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजता। वह घर से तो कुरान पाक पढ़ने के लिए निकल जाता, मगर फिर आवारा दोस्तों के साथ मिलकर खेलकूद में मसरूफ हो जाता। एक दफा सरदार मौलवी के पास अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए गया। वहां जाकर देखा तो उसका बेटा मौजूद ही नहीं था। उसने पूछा, मेरा बेटा पढ़ने के लिए नहीं आया? मौलवी साहब ने कहा कि आपका बेटा पिछले 10 दिन से छुट्टी लेकर गया हुआ है। उसने कहा, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और मैं घर में अकेला हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे अपने पास हर वक्त बिठाकर देखना चाहती है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आज बच्चों को पढ़ाकर आपके यहाँ अयादत के लिए आने ही वाला था, ताकि अयादत कर सकूं। यह सुनकर सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया और सोचने लगा कि हार्ट अटैक कौन सा, हार्ट अटैक कैसा, हार्ट अटैक। उसने मौलवी को तो कुछ ना कहा, खामोशी से अपने घर वापस आ गया और घर आकर अपने बेटे का इंतजार करने लगा। जैसे ही सरदार का बेटा घर आया, उसने पूछा कि आज कहाँ थे? उसने कहा, अब्बा, मौलवी साहब ने आज बहुत ज्यादा सबक दिया था, जिसको याद करने में मुझे देर हो गई। सरदार ने अपने बेटे के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब सरदार ने बेटे के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मारा, उसकी आवाज उसकी बीवी तक पहुंची। वह चीखती हुई कहने लगी, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? आखिर इसने ऐसा क्या किया है? सरदार ने चीख कर कहा, अपने बेटे से पूछो कि यह मौलवी साहब को क्या बोलकर पढ़ाई से जान छुड़ा रहा है। यह मौलवी साहब को कहकर आया है मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और वह आखिरी दिनों में मुझे देखना चाहती है। यह सुनकर उसकी माँ ने भी उसको धक्का दिया, मगर बाप के खूब डांटने पर सरदार का बेटा रोने लगा। कहने लगा, मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं। वह सारा दिन हमसे अपने घर की सफाई करवाते रहते हैं और हर वक्त काम करवाते हैं, इसलिए मैं काम से बचने के लिए उसके पास पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था। यह सुनकर उसकी माँ ने उसको गले से लगाया और अपने शौहर को कहने लगी, आप इस गांव के सरदार हैं, जाकर उस मौलवी को पूछे कि वह बच्चों पर आखिर इतना जुल्म क्यों करता है कि डर के मारे मेरा बच्चा वहां से भाग आया। उसकी माँ अपने बेटा को लेकर अंदर चली गई और सरदार अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने सोचा था मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल करेगा, मगर यह तो शायद मेरा नाम ही डूबा रहा है। सरदार ने किसी और मौलवी का बंदोबस्त किया कि शायद यह मेरे बेटे को पढ़ा दे, मगर उसने भी पढ़ाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे वह आवारा हो गया और वहीं दूसरी तरफ पाकीज़ा, जो कि 5 वक्त की नमाजी थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती, और वहीं उसका होने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था। फिर दिन गुजरता गया। काफ़ी अरसे के बाद जब पाकीज़ा 18 साल की हो गई तो सरदार साहब उसके घर गए। वह बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे पाकीज़ा के हाथ में रखे और कहा कि अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। पाकीज़ा का बाप वे पैसे लेने से इनकार करने वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में सरदार के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा हुआ था, मगर फिर भी न जाने वह क्यों खामोश रहा और सोचने लगा कि अगर सरदार सच में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया है तो मैं क्या करूंगा। अपनी नेक सीरत बेटी का उसके शराबी बेटे से निकाह नहीं कर सकता हूं। सरदार ने जब घर आकर अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे पाकीज़ा को देकर आया हूं, यह सुनकर वह चीखने लगी कि अभी तक तुम वह बात भूले नहीं हो। वह गरीब घर की बेटी है, न जाने हमारी बहू कैसे बनेगी। सरदार के बेटे ने गुजरते हुए यह बात सुन ली। सरदार के बेटे को पाकीज़ा से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि हर वक्त सरदार अपने बेटे को पाकीज़ा की ही मिसाल दिया करता था। वह तो यहाँ तक सोचने लगा कि अगर यह पाकीज़ा मेरे सामने आ गई तो मैं उसको जान से मार दूंगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता पाकीज़ा के साथ तय कर दिया है तो उसका खून खोलने लगा और उसने बाहर जाकर अपने दोस्तों को यह बात बताई और कहने लगा, इस गरीब की लड़की की क्या औकात कि वह मुझ जैसे अमीर बाप के बेटे से शादी करे, और कहने लगा, मैं उसको अपने काबिल तो क्या किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। सरदार के शराबी और आवारा बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बनाया कि वहां बैठी हुई पाकीज़ा, जो कि कुरान पाक को लेकर उसकी तिलावत कर रही थी, उसकी रूह कांप गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरा होने वाला है। वह कुरान पाक की तिलावत तो कर ही रही थी, मगर उसका दिल तिलावत में नहीं लग रहा था। उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मगरिब का वक्त हो चुका था।
अचानक उसके घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वह दुकान के अंदर बंद है। जब पाकीज़ा की माँ ने यह सुना तो वह दौड़ती हुई दुकान की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे उसकी बहन भी चली गई। अब सिर्फ पाकीज़ा घर में थी। वह भी अपनी माँ के साथ जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम यहीं रुको और अपने बाप के लिए दुआ करो, हम अभी आ जाते हैं। पाकीज़ा घर में अकेली थी। अचानक घर की दीवार फांद कर गांव के आवारा लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही पाकीज़ा ने कदमों की आवाज़ सुनी, उसने पीछे घूमकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह लड़के पाकीज़ा को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। अचानक उनमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। पाकीज़ा ना बाहर जा सकती थी और ना कहीं छुप सकती थी। वह बड़ी हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। धीरे धीरे वह लड़के पाकीज़ा से नजदीक होते जा रहे थे और वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी। इतने में दरवाजे में दस्तक हुई। पाकीज़ा दरवाजे की तरफ भागी। इतने में दरवाजा बाहर से खुल चुका था, क्योंकि आने वाले को यह मालूम हो चुका था कि दरवाजा बाहर से बंद है। जैसे ही दरवाजा खुला, आगे सरदार साहब खड़े थे। वह हैरान और परेशान था कि उस लड़की के साथ कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। उसके बाप की दुकान पर ना कोई आग लगी थी, ना कोई मुसीबत आई थी। यह सब सिर्फ एक साजिश थी। जब सरदार तक यह बात पहुंची तो वह लड़के सरदार को भड़काने लगे कि यह लड़की अच्छी नहीं है, और पास बैठा सरदार का बेटा भी भड़क उठा कि मैं ऐसी बदकिरदार लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। सरदार जब अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो हैरान रह गया कि आखिर मेरे बेटे को इस बात का कैसे इल्म हुआ। वह बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जब सरदार ने यह सुना तो कहने लगा, मुझे इस बच्ची पर अपनी औलाद से भी ज्यादा यकीन है। वह अपने किरदार को कभी गंदा कर ही नहीं सकती। सरदार ने अपने बेटे को कहा कि यह वही लड़की है जो मेरे घर की बहू बनेगी, और वही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे एक भी जायदाद नहीं दूंगा। यह सुनकर मजबूरन सरदार के बेटे को मानना पड़ा और सरदार पाकीज़ा का रिश्ता लेने के लिए चला गया। पाकीज़ा के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। ना वह इनकार कर सकते थे, न कबूल कर सकते थे, और पाकीज़ा की हालत बहुत ही बुरी थी। उसको बहुत ज्यादा बुखार था। वह इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? सरदार का मानना था कि नेक सीरत बीवी ही मेरे बेटे को सुधार सकती है। जैसे ही नेक बीवी घर आएगी, वह किसी न किसी तरीके से हमारे बेटे की बुरी आदत को दूर करके उसको नेक बना देगी। पाकीज़ा तो पहले ही सरदार के बेटे से शादी करने से बहुत ज्यादा खौफ खाती थी, मगर उसके माँ बाप सरदार को इनकार न कर सके और पाकीज़ा का निकाह सरदार के शराबी बेटे के साथ हो गया। पाकीज़ा पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वह सरदार का बेटा दिल ही दिल में बदले की आग ली पाकीज़ा को रुखसत करके घर ले आया। अभी तक उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। वह थकी हुई ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। अचानक जोर से दरवाजा खुला। सरदार का शराबी बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वह उसको देखकर फौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आकर बैठा, उसके मुंह से बहुत खराब किस्म की बदबू आ रही थी। वह एक ही झटके में उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा उसको गालियां देने लगा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वह रोने लगी और सोच रही थी कि ना जाने मुझे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। उसका शराबी शौहर उसको मार मार कर जब थक गया और वहीं अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा, फिर उसे नींद आ गई और वहां पाकीज़ा खौफ के मारे कांप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों के साथ कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसके दिल से खौफ कम होने लगा और ये भी सोच रही थी कि अगर कमरे से बाहर जाती हूं तो ना जाने सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से उसके शौहर की नींद में खलल पैदा होने लगा और वह उठकर बैठ गया। उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखकर उसको मजीद गुस्सा आया और कहने लगा कि बड़ी नेक बनी फिरती है। ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पड़ रही है कि तेरे पास इल्म है और मेरे पास इल्म नहीं है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आज मैं तेरी जबान ही काट दूंगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप से ताने सुनता आ रहा हूँ। वह गुस्से से उठा। उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठाकर पाकीज़ा की तरफ चल पड़ा। पाकीज़ा रोते हुए कुरान पाक को अपने सीना से लगा ली और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में शोर हो गई। सरदार और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। चीख की आवाज सुनकर दोनों मियाँ बीवी उठे और उस कमरे की तरफ भाग पड़े। कमरा अंदर से बंद था। मुलाजिमों को बुलाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। जब अंदर का हाल देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जमीन पर लेटा तड़प रहा था। उसके पास एक चाकू गिरी हुई थी और कोने में पाकीज़ा कुरान पाक को सीने से लगाए खड़ी रो रही थी। और सरदार की बीवी पाकीज़ा को बुरा भला कहने लगी। फिर अपने बेटे को उठाई। सरदार के बेटे को ना तो कोई चोट आई, ना कोई जख्म का निशान था।
सरदार पाकीज़ा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। वह रोते हुए सब कुछ बताई। फिर उस लड़के को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना ही कोई मिर्गी का दौरा था और ना ही उसे हार्ट अटैक आया था। धीरे धीरे उसकी आंखें सफ़ेद हो रही थीं। अचानक देखते ही देखते घबराकर डॉक्टर्स एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वह देखते ही देखते एक कुत्ता बन गया, जिसे देखकर डॉक्टर्स खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। बेशक यह खुदा का अजाब था। सरदार के शराबी बेटे के जुल्म पर पाकीज़ा ने अपने अल्लाह से मदद मांगी थी। यह अल्लाह की मदद थी कि वह अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। पाकीज़ा अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। अब वह हर वक्त हर लम्हा इबादत में मसरूफ़ रहती। एक रोज़ सरदार की बीवी पाकीज़ा के पास आई और आकर उसके कदमों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। पाकीज़ा ने फ़ौरन उनको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मगर मैंने उसको माफ़ कर दिया। बस वह अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको भी माफ़ कर दे। कुछ दिन गुजरे ही थे कि पाकीज़ा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आप कमेंट बॉक्स के जरिए इसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। आखिर क्यों हर माँ बाप यही समझते हैं कि एक नेक सीरत बेटी ही खराब आदतों और शराबी शौहर को सुधार सकती है? हालांकि यह काम बीवी का नहीं बल्कि एक माँ बाप का होता है। अगर वह शुरू से ही अपने बेटे की अच्छी तरबियत करते तो वह कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ता। मगर हमारे समाज में सबसे बड़ी खराबी दीन से दूरी है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे मामलात हमें सुनने को मिल रहे हैं। अगर आप एक शादीशुदा मर्द या औरत मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदा के लिए अपने औलाद को अच्छी तरबियत दें। दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम में ज़्यादा ध्यान दें। एक बात कड़वी है मगर सच है, हमारे गांव समाज में सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होते हैं। इसलिए इस्लाम की तालीम को आम करें और अपने बच्चे को इस्लाम की तालीम लाजमी दें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमारी बेटियों की किस्मत को बेहतर से बेहतर बनाए और हमारे बेटों को नेक बीवियां और बेटियों को नेक शौहर मिले। आमीन। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर करने से हो सकता है कि यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हमेशा के लिए सवाब का जरिया बन जाए। शुक्रिया।